Hello students, in today's class we are going to learn about transport of gases. तो अभी तक आपने exchange of gases you have read and understood how gases are exchanged. At what are the places in the body the gases are exchanged? So if is your lungs, there is a blood vessel that surrounds the lungs and there we have the tissues and the blood vessels, the capillary which surrounds the tissues. तो कहाँ कहाँ पे होगा? एक between lungs and the pulmonary capillaries, इन दोनों के बीच exchange होगा. ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ पे आएगा based on the difference between their partial pressure. और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से alveolus में जाएगा. यहाँ से फिर कार्बन डाइऑक्साइड out in the atmosphere and ऑक्सीजन तो it enters in this way. और वही वाला blood जब आके टिश्यू के पास आएगा the oxygen would enter into the tissues and carbon dioxide would enter into the blood and this blood will be taken to lungs. तो इस तरह से there are two places where exchange of gases occur between pulmonary capillaries and the alveolus found inside the lungs or between the systemic capillaries that surround the tissues. तो यहाँ तक you have understood about the exchange of gases in your previous lesson. Now today's topic is based on transport of gases. तो the carbon dioxide and oxygen ये जो respiratory gas है, how are they transported in our body? कैसे वो किस form में कहाँ से कैसे हो जाएगा? Today we are going to learn about it. तो we are talking about two main gases, oxygen and carbon dioxide. Okay. How is oxygen transported? Oxygen is majorly transported in the form of oxyhemoglobin. So 97% of oxygen is transported in the form of oxyhemoglobin. We will know what is oxyhemoglobin, how does it work. And so this is 97% of oxygen. What about the rest of the 3%? The remaining 3% is transported in the gaseous form in the plasma. So dissolved in plasma. Okay. तो ये जो 97% of oxyhemoglobin है, this is the bound form. Free नहीं है. This is bound to hemoglobin. This is the bound form. But this one, which is dissolved in plasma, this is a free form, free oxygen. What about carbon dioxide? The transport of carbon dioxide is a little different. Like it's very different than the transport of oxygen. ये majorly तीन तरीके से transported होगा. First, 7% of carbon dioxide is transported in the form of CO2 dissolved in plasma. तो 7% होगा हमारा dissolved in plasma. So you may ask कि मैम in case of oxygen यहाँ पे आपने you have written 3% and here you have written 7%. Why the difference? Because carbon dioxide is more soluble in water as compared to oxygen. Carbon dioxide की solubility पानी में ज़्यादा है. तो plasma contains lot of water. How much? More than 90%. So carbon dioxide more soluble in water, so it's found more in dissolved in plasma as compared to oxygen. Then remaining 93% कैसे होगा? 70% of the carbon dioxide is transported in the form of bicarbonate ions. HCO3 minus, and this also happens
दे आर फाउंड इन द प्लाज्मा, ये भी प्लाज्मा में ही मिलते हैं. एंड द रिमेनिंग अप्रोक्सीमेटली 23%, जैसे 20 to 25% अगर हम लोग पकड़ ले, एवरेज इसका अगर 23% होगा. सो दिस इज फाउंड बाउंड विथ हीमोग्लोबिन. तो ये भी महाशय हीमोग्लोबिन के साथ एक बॉन्ड बनाते हैं एंड वी कॉल इट एज कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन. कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन HbCO2 और CO2Hb. ठीक है. सो मोटा मोटा क्या सीखा? दैट दीज आर द टू रेस्पिरेटरी गैसेस, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. Oxygen is transported primarily in the form of oxyhemoglobin, and this is done by the pigment hemoglobin found in red blood cells. Okay. The remaining 3% of oxygen is found in the dissolved form, O2, found freely dissolved in the plasma. When we come to carbon dioxide is primarily transported in three ways. First, 7%, approximately 7% of carbon dioxide is found dissolved in the blood plasma. 70% of the carbon dioxide is found to be transported in the form of bicarbonate ion. कैसे बनता है, क्या बनता है, वो सारा हम लोग देखेंगे, सीखेंगे आज के लेसन में. और remaining average 23% is transported as carbamino hemoglobin. हीमोग्लोबिन के साथ उसकी बॉन्डिंग हो जाती है and hemoglobin helps to transport carbon dioxide. So first we will learn about the transport of carbon dioxide and then we'll go to transport of oxygen. So give heading transport of carbon dioxide. तो hemoglobin is found where? It is found in the red blood cells or red blood corpuscles more accurately. और इस हीमोग्लोबिन में क्या है? हीमोग्लोबिन में दो पार्ट है, एक है हीम और दूसरा है ग्लोबिन. हीम है हमारा नॉन प्रोटीन पार्ट, ठीक है, और ग्लोबिन है हमारा प्रोटीन पार्ट. ग्लोबिन बना हुआ है 2 अल्फा और 2 बीटा चेन, ये प्रोटीन का चेन है, पॉलीपेप्टाइड चेन है. सो 2 अल्फा और 2 बीटा से बना हुआ है हमारा ग्लोबिन. और इन्हीं पॉलीपेप्टाइड चेन में हम लोग को ये हीम ग्रुप मिलता है विच कंटेन्स Fe2+ आयन एट द सेंटर. तो बेसिकली अगर आप हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर देखें, सो इट इज केपेबल ऑफ बाइंडिंग टू 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, फुल्ली सैचुरेटेड. उसके अगर चारों पॉकेट भर जाए तो 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ वो बाइंड कर सकता है. और हीमोग्लोबिन की एक खास बात है कि हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी बाइंड कर सकता है. एंड the place where hemoglobin binds with oxygen and the site where carbon dioxide binds with oxygen, both are different. एक जगह के लिए दोनों मारपीट नहीं करते. कार्बन डाइऑक्साइड की बाइंडिंग हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में जहाँ पे होती है वहाँ पे ऑक्सीजन की बाइंडिंग नहीं होती, दोनों की बाइंडिंग की जगह अलग है. तो देयर साइट ऑफ बाइंडिंग इज डिफरेंट फॉर बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. बट येस, हीमोग्लोबिन इज एन अनबाइस्ड मॉलिक्यूल. उसको कुछ ज़्यादा दोस्ती नहीं है किसी से भी. जहाँ पे पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा वो उसके साथ वो बाइंडिंग करेगा. अगर ऑक्सीजन के साथ में ज़्यादा पार्शियल प्रेशर है तो देन इट विल टेंड टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन. अगर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है तो फिर वो ऑक्सीजन को छोड़ेगा और हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगा. तो पार्शियल प्रेशर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल कि हु हीमोग्लोबिन इज गोइंग टू टेक अप. ठीक है, तो this information is important for both कार्बामिनो हेमोग्लोबिन एंड ऑक्सी हेमोग्लोबिन, दोनों ही रिलेटेड है. तो आपको ये समझना है कि
ये जो मैंने लंग्स से बताया था, लंग्स से ब्लड में ऑक्सीजन आएगा, ऑक्सीजन फिर जाके टिश्यू के पास जाएगा, टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, आके लंग्स पे चला जाएगा, राइट। ये हमारा रूट होगा। नाउ व्हाट हैपेंस इन द टिश्यू साइड, लेट अस सी। ये हमारे टिश्यूज है, ये हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ECF, और ये हमारी ब्लड कैपिलरी। इसमें हो गए हमारे महान RBC। थोड़ा सा बड़ा करके हम लोग देख रहे हैं सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड द स्टेप्स। सो दिस इज आर दिस इज अ थिन लेयर ऑफ एंडोथीलियम। कैपिलरी में आपको पता है वेरी फ्लैट सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट स्क्वामस एपिथेलियम सेल्स आर प्रेजेंट। इसको हम लोग बोलते हैं एंडोथीलियम, है ना। ये कैपिलरी वॉल में एकदम पतला सा लेयर बनाते हैं। ये हो गई हमारी RBC, और यहाँ पे जो है ये हो गया हमारा प्लाज्मा, पूरा हो गया ब्लड, ठीक है। अब ये कहाँ से आ रहे हैं, ये महाशय कहाँ से आ रहे हैं? दिस ब्लड कैप इज कमिंग फ्रॉम लंग्स, इट इज कमिंग फ्रॉम लंग्स। तो इनके पास हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन को बाइंड कर रखा है, ठीक है। हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन को बाइंड कर रखा है, और ये जो बॉन्डिंग है ये टूटेगी, टूट के हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को रिलीज करेगा, और ये ऑक्सीजन चली आएगी टिश्यू के पास। और इसमें बहुत सारे फैक्टर्स है कि क्यों हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन का साथ छोड़ना पड़ा। तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रांसपोर्ट हो गया? फर्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली डिसॉल्व फॉर्म में है प्लाज्मा में, ये प्लाज्मा है हमारा सारा प्लाज्मा। फिर और एक फॉर्म क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड RBC के अंदर आएगा, आने के बाद ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बोनिक एनहाइड्रेज जिसके लिए जिंक आयंस इंपॉर्टेंट है, ये बनाएगा एक एसिड नोन एज कार्बोनिक एसिड, ठीक है। तो पहले क्या देखा स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड के 3 ways are there through which carbon dioxide is transported. Number 1, कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा में डायरेक्टली डिसॉल्व हो सकता है। सेकेंड, बाइकार्बोनेट आयन कैसे बनता है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे। ये 7% वाला ये ऐसे हो गया डायरेक्टली। अभी हम लोग पढ़े 70% वाला कि कैसे 70% ऑफ बाइकार्बोनेट आयन फॉर्म्स बनते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर और बन गया हमारा कार्बोनिक एसिड, और ये कार्बोनिक एसिड फिर टूटेगा H+ एंड HCO3-। दिस इज अ बाइकार्बोनेट आयन, बाइकार्बोनेट आयन। अब जितना कार्बन डाइऑक्साइड इस टिश्यू से, क्योंकि टिश्यूज ने पहले से बना रखा है बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ पे इसका पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है, ये वाला जो खून आ रहा है इसमें दिस ब्लड हैज़ लेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एज कम्पेयर टू दिस। सो यहाँ पे PCO2 ज़्यादा था, तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड ने एंट्री मारी, कार्बन डाइऑक्साइड ने एंट्री मारी, और कार्बन डाइऑक्साइड RBC के अंदर भी चला गया, कार्बन डाइऑक्साइड RBC के अंदर भी चला गया। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड हिट रिएक्ट्स विद वाटर विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज, जो कि बहुत ज़्यादा फास्ट इस रिएक्शन को कैटलाइज करता है और बनाता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। तो जितना जितना कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है मैक्सिमम ये H+ और HCO3- बना रहा है। अब प्रॉब्लम क्या है, दिस H+ कैन लीड टू एसिडिटी। इफ H+ इज मोर
द pH इज गोइंग टू रिड्यूस, इसका मतलब ब्लड हो जाएगा एसिड। इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं एसिडोसिस। तो एसिडोसिस हमको नहीं होने देना है, एसिडोसिस विल नॉट टेक प्लेस। उसके लिए क्या होगा, फर्स्ट ये जो हेमोग्लोबिन है इट गोज एंड बाइंड्स विद दिस हेमोग्लोबिन, इट कम्स एंड बाइंड्स विद द H+ आयन और इसको बनाता है हेमोग्लोबिनिक एसिड। ठीक है, तो हेमोग्लोबिन फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, हेमोग्लोबिन एक्ट्स एज अ बफर। तो जो H+ आयंस एक्स्ट्रा बने यहाँ पे, उसने क्या किया, ब्लड को एसिड होने से बचाया। उसने हेमोग्लोबिन को एज अ बफर यूज किया, बॉडी ने हेमोग्लोबिन को क्या किया, उसने बाइंड कर लिया H+ के साथ और pH लेवल को डिक्रीज होने से रोक लिया। क्योंकि ऑल द एंजाइम्स एंड ऑल दे वर्क एट अ पर्टिकुलर pH। अगर अचानक से ब्लड का एसिडिटी ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा या अल्कलाइन हो जाएगा, देन इट विल लीड टू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। अब ये so more the reaction is taking place, large number of HCO3- ions they accumulate। और एक चीज साइमल्टेनियसली यहाँ पे हो रही है कि प्लाज्मा में भी ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम्स मिलता है, बट बहुत कम क्वांटिटी में। तो प्लाज्मा में भी ना हमारा CO2 + H2O H2CO3 forms H+ and HCO3- ये बन रहा है। ठीक है, और यहाँ के जो H+ है उसको ब्लड के जो प्रोटीन्स है दे हेल्प इन एडजस्टिंग दे एक्ट एज अ बफर। तो प्लाज्मा प्रोटीन्स वो कर लेते हैं, वो संभाल लेते हैं। आरबीसी के अंदर हेमोग्लोबिन संभाल लेता है। तो ये जो बाइकार्बोनेट आयन है दे डिफ्यूज आउट ऑफ द आरबीसी एंड दे एंटर इनटू द plasma. They diffuse out and they enter into the plasma. But to maintain the electrical neutrality, electrically neutral होना चाहिए, सारे नेगेटिव आयन चले गए तो ये न्यूट्रल नहीं रहेगा। उसकी वजह से और एक नेगेटिव आयन आ जाता है अंदर, which is chloride ion, and this is done by with the help of an protein or with the exchanger जो HCO3- को बाहर करेगा और Cl- को अंदर लेके आएगा। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में हम लोग क्या देख रहे हैं, फर्स्ट ये जो द ब्लड दैट इज कमिंग फ्रॉम द लंग्स इज रिच इन ऑक्सीजन, बट हियर hemoglobin dissociates and it releases the oxygen and supplies it to the tissues. Because there are multiple factors, because the carbon dioxide which is higher in concentration in the tissues वो चला गया अंदर, और जाने के बाद उसने बहुत सारा H+ बनाया और H+ हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड करना चाहता है, हेमोग्लोबिन भी H+ के साथ बाइंड करना चाहता है, तो वो धीरे धीरे इसको छोड़ देगा। तो H+ की प्रेजेंस में हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को छोड़ने की टेंडेंसी उसको बढ़ जाती है, तो वो छोड़ देता है, इसीलिए वो ऑक्सीजन यहाँ पे आके लग जाता है। ठीक है, तो these two things happen simultaneously। ऐसा नहीं है कि हेमोग्लोबिन वेला बैठा था और फिर उसने H+ के साथ बाइंड किया, ये सारा चीज़ एक साथ हो रहा है। तो हेमोग्लोबिन ऑक्सी हेमोग्लोबिन प्रेजेंट है, पर हेमोग्लोबिन को H+ अपनी तरफ खींच रहा है कि भाई आओ मेरे साथ बाइंड करो, तो फिर वो डिसोसिएशन हो जाती है। क्योंकि तो दैट इज व्हाट वन थिंग दैट यू हैव लर्न कि जब H+ का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा ब्लड में, तब हेमोग्लोबिन की ब्रेकअप हो जाएगी ऑक्सीजन के साथ, डिसोसिएशन हो जाएगा हेमोग्लोबिन ऑक्सी हेमोग्लोबिन का। तो ऑक्सी हेमोग्लोबिन टूट जाएगा और हेमोग्लोबिन + ऑक्सीजन बनेगा। सेकेंड क्या हो रहा है यहाँ पे, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो गैसियस फॉर्म में प्लाज्मा में डिसॉल्व रहता है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 7%। देन प्लाज्मा में भी ये एक एंजाइम है कार्बोनिक एनहाइड्रेस, द सेम रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस इन द प्लाज्मा एंड inside the RBC, but inside the RBC it is very fast, this is very fast। So that's why we get multiple और a large quantity of H+ and bicarbonate ion। बाहर भी बनता है बट बहुत कम अमाउंट में बाइकार्बोनेट आयंस बनते हैं। Where is the another form of carbon dioxide transport? In the form of carbaminohemoglobin। So
कुछ कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ भी बाइंड करते हैं और बनाते हैं HbCO2, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, क्योंकि वो एमिनो पार्ट ऑफ द पॉलीपेप्टाइड उसके साथ जाके कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड करता है, इसलिए उसका नाम पड़ता है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड कर सकता है, वो H+ के साथ बाइंड कर सकता है, वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ भी बहुत ज़्यादा हाई एफिनिटी के साथ बाइंड करता है, बट वो यहाँ पे हम लोग उस चीज़ को नहीं पुट करेंगे। यहाँ पे प्राइमरीली हमारा फोकस होना चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड इन व्हाट फॉर्म इट इज बीइंग ट्रांसपोर्टेड। 70% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयन। बनता कहाँ पे है? बनता है आरबीसी में, बट जाता कहाँ पे वो चला जाता है प्लाज्मा में। तो ये पूरा जो प्लाज्मा में ये हमारा बाइकार्बोनेट आयन ऑलमोस्ट 70% चला गया। और इनसाइड द आरबीसी क्या है? इनसाइड द आरबीसी ये हमारा कार्बोमीनो हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी नहीं, कार्बोमीनो, और 7% directly dissolved not as bicarbonate but as plain carbon dioxide। ठीक है, अब यही जो पूरा and another thing I told that hemoglobin binds with H+ ion binds with hemoglobin and forms this HHB which acts as a buffer। वो ब्लड के pH को डिक्रीज नहीं होने देगा, एसिड नहीं बनाने देगा, एसिडोसिस करने से रोकेगा। और H3- वो बाहर जाता है, उसके बदले क्लोराइड आयंस अंदर आते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट। ठीक है, नाउ व्हेन द सेम ब्लड विल गो टू द लंग्स, वहां पे ये पूरा उल्टा हो जाएगा, द रिवर्स विल हैपन, क्योंकि लंग्स के जो एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बहुत ज़्यादा है, और फिर ये जो रिएक्शंस है दे आर ड्रिवन टुवर्ड्स द ऑपोजिट और इन द रिवर्स डायरेक्शन। सो लेट्स सी, ये कहाँ पे था? टिश्यू में था। तो आपको ये समझना है कि टिश्यू, अब ऑलरेडी यू हैव स्टडीड अबाउट रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, तो रेस्पिरेशन का बेसिक आइडिया आपको हो गया है ना। तो सेल के अंदर है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में बने होगा आपका क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल से कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा कहाँ पे? साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म से वो बाहर आके जाएगा कहाँ पे? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और इंटरस्टिशियल स्पेस, ECF में जाएगा, फिर ECF से फिर वो जाके ब्लड में आएगा। इस तरह से होता है, डायरेक्टली इधर से जंप करके अंदर नहीं घुसेगा, ये स्टेप बाय स्टेप होता है। बट जनरली वी से दैट इट बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज। टिश्यूज में कहाँ पे? इनसाइड द सेल द कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड inside the mitochondria due to Krebs cycle, फिर माइटोकॉन्ड्रिया से वो डिफ्यूज आउट हो जाके कहाँ रहेगा? साइटोप्लाज्म में रहेगा, साइटोप्लाज्म से वो डिफ्यूज आउट होके कहाँ आएगा? ECF में आएगा, ECF से आके जाके ब्लड में एंटर करेगा। ये बेसिक आइडिया को होना चाहिए। नाउ एट लंग्स, लंग्स में क्या होगा? लंग्स में लंग्स में क्या होगा? ये जो हमने HCO3- बनाया था, जो सब बाहर चला गया था, ये वापस आ जाएगा आरबीसी के अंदर, और क्लोराइड फिर से चला जाएगा बाहर, और तो अंदर आ गया हमारा HCO3-, और जो HHB बना था, हीमोग्लोबिन HHB से छूट जाएगा, इन दोनों की जो बॉन्डिंग है ये भी टूट जाएगी। सो H.HB विल ऑल्सो रिलीज H+ एंड हीमोग्लोबिन अलग से, राइट। तो ये जो H+ है, इट कंबाइंस विद HCO3- एंड दे विल फॉर्म
H2CO3 और H2CO3 फिर जाके टूट जाएगा CO2 एंड H2O में, और फिर ये CO2 यहाँ से निकल के चला जाएगा एल्वियोलस के अंदर, यहाँ से चला गया CO2। क्यों? यहाँ पे ऐसा क्या हो गया? यहाँ पे ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर था, इफ यू रिमेम्बर द वैल्यूज व्हेन वी वी डूइंग द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, 104, 95, 40, 45 जो सारे वैल्यूज आपके थे, यहाँ पे ऑक्सीजन की पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो HHB है, ये HHB जो अलग होगा, इसकी टेंडेंसी होगी कि वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म करे, ठीक है। तो दो चीज़ें हो रही है, दो या तीन चीज़ें। फर्स्ट क्या हो रही है कि जो HCO3 माइनस प्लाज्मा में था बाइकार्बोनेट आयंस, वो अंदर आ गए आरबीसी के, क्लोराइड आयंस फिर से बाहर चले गए। बाइकार्बोनेट्स आयन आने के बाद उन्होंने फिर से H+ के साथ बाइंड किया और बनाया कार्बोनिक एसिड। H2CO3 क्या है? ये है कार्बोनिक एसिड, और कार्बोनिक एसिड फिर टूट गया कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन में, और यहाँ से वो चला जाएगा एल्वियोलस के अंदर। और ऑक्सीजन का क्या सीन है? ऑक्सीजन इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज ऑन अ हायर साइड इनसाइड द एल्वियोलस, तो उसकी टेंडेंसी है कि हायर पार्शियल प्रेशर से लोअर पार्शियल प्रेशर की तरफ आए, और वो आके HHB की जो बॉन्ड है उसको भी वो तोड़ देती है, और हीमोग्लोबिन फ्री हो जाता है, और ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है। तो ये जो सारा in what form carbon dioxide is transported majorly in the form of bicarbonate. Where is it found? It is found in the plasma. What happens near the at lungs? This bicarbonate enters into RBC, gets converted into carbon dioxide, and that carbon dioxide diffuses back into alveolus. तो यहाँ पे ऑक्सीजनेशन हो रहा है, हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन के साथ लोड किया जा रहा है। यही ऑक्सी हीमोग्लोबिन जब टिश्यू में जाएगा वहाँ पे इसकी अनलोडिंग होगी। तो सपोज आप सोचो कि हीमोग्लोबिन एक कूली है, तो उसने लंग्स में से ऑक्सीजन का बस्ता लिया और अपने पीठ पे या सर पे लिया, और फिर वो ट्रैवल कर रहा है, वॉक कर रहा है कहाँ पे? टिश्यू के पास। टिश्यू में जाने के बाद उसने अपने पीठ से और अपने सर से वो बोझा, ऑक्सीजन का बोझा किसको दिया? टिश्यू को दिया, और टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड का बोझा लिया, फिर चला आया लंग्स के पास। लंग्स के पास उसने टिश्यू का बोझा दिया, कार्बन डाइऑक्साइड का बोझा दिया, और फिर से ऑक्सीजन लिया। तो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की जो बाइंडिंग है, और या फिर हीमोग्लोबिन या कार्बन डाइऑक्साइड की जो बाइंडिंग है, वो क्या होनी चाहिए? रिवर्सिबल और या इरिवर्सिबल? कैसी होनी चाहिए? दैट शुड बी रिवर्सिबल, ठीक है। वो फेविकोल का जोड़ होने से नहीं होगा। अगर हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन को अपने पास ही रख लिया तो क्या फायदा? ऑक्सीजन को किसके पास जाना है? ऑक्सीजन को जाना है टिश्यू के पास। तो हीमोग्लोबिन कैन नॉट कीप द ऑक्सीजन टू इटसेल्फ, इट हैज टू डिलीवर द ऑक्सीजन टू द टिश्यूज। तो बाइंडिंग हमेशा रिवर्सिबल होनी चाहिए, इरिवर्सिबल नहीं कि एक बार जुड़ गया तो टूटेगा नहीं बंधन, नहीं, ऐसा नहीं। तो हीमोग्लोबिन का काम ही है लोडिंग अनलोडिंग। पहले एसोशिएट करेगा, फिर डिसोशिएट करेगा। पहले खुद के ऊपर ऑक्सीजन लेके आएगा, फिर उसको किसके पास देगा? टिश्यू के पास। फिर टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, फिर चला जाएगा लंग्स के पास, लंग्स में छोड़ दिया, फिर लंग्स से ऑक्सीजन लेगा, टिश्यू को छोड़ेगा। तो हीमोग्लोबिन का काम है लोडिंग एंड अनलोडिंग। तो ये आपको याद रखना है कि इट हैज़ टू बी अ रिवर्सिबल बाइंडिंग। एंड ऑल दीज थिंग्स डिपेंड ऑन कि H+ आयन कंसंट्रेशन कितना है, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कितना है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है। इन सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है कि हीमोग्लोबिन किसके साथ बाइंड करेगा।